college today on the World Pharmacist Day. So, before starting before sharing my views with you, I would like to just interact with you people. Once again, good morning students. Good morning, ma'am. Good morning students. Good morning, ma'am. सत श्री अकाल रोपड़ वालियों. सत श्री अकाल. So now is the proper response has come. So that means you are completely aware. सो नहीं रहे हो, जगे हुए हो. और जो लास्ट वाली रोज में बच्चे फोन पे लगे हुए हैं, प्लीज spare your 10 minutes because it will help you in improving your future. So kindly, whenever there is such a conference, you should be very attentive to hear what the other people wants to say or what you can gain from that person. You should be very attentive, not busy on your phone, please. So starting with my interaction with you, has anybody heard on the topic of pharmacovigilance? Do you know the meaning of this subject? Do you know the meaning of this topic, pharmacovigilance? Anybody? Can I ask? Anybody has the answer for that? Okay, let me tell you. So pharmacovigilance is the science which deals with the activities relating to the detection, understanding and assessment of adverse drug reactions of any medicine which you have taken. Like अभी आपने देखा कि कोविड का टाइम्स आया, आप सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन किसी ने भी जाके रिपोर्ट किया ऑनलाइन या एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स पे जाके रिपोर्ट किया आपने कि आपको उन वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट आए, जबकि आप में से कितने ही बच्चों ने साइड इफेक्ट फेस भी किए होंगे, बट किसी ने जाके रिपोर्ट नहीं किया किसी ने? Nobody. So pharmacovigilance is dealing with this topic only, that you have to report the side effects or any adverse drug reaction which you face while taking any medicine. So what we can do for that is, there are separate ADR monitoring centers. ADR is adverse drug reactions. There are some centers constructed in India where you can go and report your side effects. If you can't go there, then you can search your internet. There are so many apps where you can report your side effects. There are so many ADR reporting forms which you can fill and you can share your information with all the other people. ओके, ये इंफॉर्मेशन शेयर करने का फायदा क्या होगा, कोई बता सकते हैं? आपको किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट आए जो आज तक किसी ने नहीं शेयर किए थे, आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी ऑनलाइन, एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म पे शेयर कर दी, या एप्स जो है, इसका ऐप बना हुआ है PVPI, फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, इसका मोबाइल ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड there you can share your information regarding all the areas. ठीक है? So अब इसका बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट लगता है आपको अगर आप शेयर करते हो अपनी प्रॉब्लम्स? Yes? Awareness. Very good answer. So just clap for this guy. What's your name? Pardon? Amit? Sayyid. Okay, very good. At least you are hearing the conversation. So this is the benefit that awareness होगी. आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन का जब साइड इफेक्ट पता चल गया तो आपको अवेयरनेस होगी कि बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान से लें, ठीक है? इसके बाद इस अवेयरनेस का और किसको फायदा होगा? We can communicate. Side effects next time to only
Very good. Clap for this guy. So next time क्या होगा कि we can डॉक्टर्स भी जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में, और हम पेशेंट्स को भी बता सकते हैं, तो फ्यूचर जनरेशंस जो है ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं फेस करेंगे. क्लियर? इज दैट क्लियर? सो और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आजकल जरूर पता होनी चाहिए कि अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हो कि कोई ऐसी चीज हो जो आपके एरियाज को डिटेक्ट कर दे और वो डाटा ऑनलाइन आपको मिल जाए, सो देयर कम्स द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI. So I think you have heard this thing. So we can take the help of AI there. AI will help you in the detection of areas and which will further help you in the clinical research. ऑटोमेटिकली सारा डाटा आपके गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा कि ये आपने मेडिसिन ली, ये वैक्सीन ली, तो उसके ये साइड इफेक्ट्स आए. ठीक है? तो आपको फार्मेसी के साथ साथ कंप्यूटर्स की भी नॉलेज अपनी छुट्टियों में घर पे फोन पे मत टाइम वेस्ट किया करो, कंप्यूटर कोर्स किया करो, कुछ अच्छी नई चीजें सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, साइबर सिक्योरिटी सीखो, रोबोटिक्स की फील्ड आगे, फार्मेसी में तो आगे रोबोटिक्स ने इतना ज़्यादा पार्ट ले लेना है कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है. सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी in India and abroad. ठीक है? Then so I hope the concept of pharmacovigilance is clear to you till now. Clear? Now my second topic is e-health. E means electronic. Electronic health. आप में से कितने लोगों के घर पे आपके पेरेंट्स डिजिटल वॉच से बीपी चेक करते हैं, जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो भी डिजिटल आ गया, डिजिटल थर्मोमीटर आ गया. अब आप अपनी ग्लूकोज लेवल भी घर पे चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर. ठीक है? और आपने गूगल पे जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया होगा गूगल पे, गूगल फिट. सुने? नहीं सुना? वो आपको बताएगा कि आज के दिन में आप कितने स्टेप्स चल लिए. तो जो कैलोरी कॉन्शियस या डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए जो बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको हेल्थ कॉन्शियस बनाती हैं कि आपने आज कितनी कैलोरीज खा ली हैं, इतनी आप चल लिए, इतनी कैलोरीज आपने बर्न कर ली. बिल्कुल बेटे, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए ये टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है? सो इसमें है ई हेल्थ. ई हेल्थ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ. सारी जो हमारी फार्मेसी है वो हम डिजिटलाइज कर देंगे. वी विल टेक द हेल्प ऑफ AI एंड रोबोटिक्स. कैसे? अब आप सबसे पहले हॉस्पिटल में जाते हो, आप पहले वहाँ 2 घंटे लाइन में लगते हो, फिर आपकी वो बनती है प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल. कुछ नहीं ऐसा करना, आपको ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपकी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होएगी, आपकी प्रिस्क्रिप्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएगी. प्लस अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो हॉस्पिटल नहीं जा सकता तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें वो डायरेक्ट डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से इंटरेक्ट कर सकता है. कैसे? वीडियो कॉलिंग है हमारे पास, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं. आप नहीं जा सकते, आप वीडियो कॉल करके अपनी सिचुएशन बता सकते हो कि आई एम फीलिंग दिस, प्लीज राइट मी अ मेडिसिन. ठीक है? सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन ओवर हियर. हैव यू हर्ड ऑफ टेलीमेडिसिन? ओके. सो कुछ भी आपको नहीं करना, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली आपके लिए डिजिटल जो है प्रोसेस वो करेगा. सो आपकी प्रिस्क्रिप्शन भी बन गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गई, अपॉइंटमेंट भी हो गई, आपको कंसल्टेशन भी मिल गई फ़ोन पे, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू. उसके बाद जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हुई उसमें लिखा है कि ये दवाई आपको 3 बार ही खानी है, लेकिन आप भूल गए खाना, तो उसके लिए आप कैसे आप कर सकते हो डिजिटल
टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो कि आपको याद रहे वो दवाई खाना। सो आप रिमाइंडर्स फीड कर सकते हो अपने फ़ोन में कि जब भी मेरी मेडिसिन का टाइम हो तो मुझे एक रिमाइंडर आ जाए, सो दैट आई डोंट फॉरगेट टू टेक माई मेडिसिन, आई डोंट स्किप माई डोज। ठीक है, तो सारा कुछ फ़ोन ने कर दिया, ठीक है ना? ओके, इसके अलावा अब आपकी मेडिसिन भी आ गई, देख भी लिया डॉक्टर, सारा कुछ हो गया। अब डॉक्टर ने कहा आप ये वाले लैब टेस्ट करवाओ, ठीक है? तो लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक डॉक्टर के पास आपका एक हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा जिसमें आपका सारा डाटा होगा, ठीक है? आपका पिछले साल इतना बीपी था, इतनी ब्लड शुगर लेवल थी, ये अब आपका नेक्स्ट आपने ये टेस्ट करवाना है, मतलब एक कंप्लीट आपका हेल्थ रिकॉर्ड है जो डॉक्टर के पास भी सेव हो गया है और फार्मासिस्ट के पास भी। किस पे सेव हुआ? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ने एक सारा आपका काम आसान कर दिया कि लाइफ लॉन्ग आपके पास एक हेल्थ रिकॉर्ड बन गया जिसको हम कहते हैं EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है? तो वो आप लाइफ लॉन्ग आपके रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक? उसके बाद आप इस डाटा को और किस चीज़ के लिए, इसकी अवेयरनेस आप बाकी लोगों को भी बता सकते हो ना कि आप नहीं जा सकते हो डॉक्टर के पास, तो आप टेली मेडिसिन पे ही कंसल्टेशन कर सकते हो डॉक्टर से, ठीक है? तीसरा मेरा पॉइंट था डिस्कशन का, भी कुछ लोगों का डाउट था अबाउट द फार्माकोविजिलेंस, सॉरी फॉर्म डी। फॉर्म डी में क्या है कि अगर आपको कुछ अभी लग रहा है कि मैंने एडमिशन ली होती फॉर्म डी में, डजंट मैटर, आप अभी भी बी फार्मा के बाद फॉर्म डी में एडमिशन ले सकते हो। हमारे यहाँ इंडिया में चितकारा कॉलेज है, मणिपाल कॉलेज है, इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, वो आपको फॉर्म डी करवाएंगे, ठीक है? तो या तो आप +2 के बाद सीधा फॉर्म डी कर लो, 6 साल का कोर्स है जिसमें 5 साल की आपकी थ्योरी है और 1 साल की इंटर्नशिप है, या फिर अगर आपने बी फार्मेसी में एडमिशन ले ली है तो हम डायरेक्टली बी फार्म के बाद 3 साल का उनका लेटरल एंट्री का एक स्कीम होती है, उसमें आप 3 इयर्स का जो कोर्स है फार्म डी का वो भी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर डूइंग बी फार्म, ठीक है? तो फार्म डी करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में डायरेक्टर्स तक की पोस्ट तक आप जा सकते हो, ठीक है? QA मैनेजर बन सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इवन आप ड्रग एक्सपर्ट्स भी बन जाओ, ड्रग कंसल्टेंट्स भी बन जाओ, तो आप घर बैठे बैठे यू कैन अर्न सो मच ऑफ द मनी, ठीक है? सो द मेन थिंग इज आपको उसके लिए करना क्या है, अपनी अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स, अबाउट द कंप्यूटर्स एंड अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। AI और रोबोटिक्स तो आपको फार्मेसी से कनेक्ट करके आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे अर्न करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग